Hello everyone, today we will discuss about the stomach physiology. But before that, let's look at some basic information of the stomach. Stomach is the most dilatable part of GIT. It occupies the epigastric, umbilical and the left hypochondriac region. When empty it is J-shaped and when partially distended it is pyriform. The mean capacity of stomach at birth is 30 to 50 ml. It is 30 to 50 ml and in adults it reaches up to 1.5 to 2 लीटर. दो और ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिनके कैपेसिटी के बारे में पूछा जा सकता है इन AIAPGT. सो फर्स्ट वन इज द यूरिनरी ब्लैडर, देन वी हैव द गॉल ब्लैडर. तो जो गॉल ब्लैडर की कैपेसिटी है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ जितनी कैपेसिटी स्टमक की होती है उसी के बराबर होती है, यानी गॉल ब्लैडर की कैपेसिटी भी 30 to 50 ml ही होती है. एंड यूरिनरी ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है इट इज 250 to 500 ml. Then the most dependent part of the stomach is incisura angularis and the lining of the stomach is simple columnar epithelium. इन तीन क्वेश्चन को पूछा जा सकता है एग्जाम में. Then we have some extra points. The most dependent part of stomach is incisura angularis, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बट अगर ये चीज पूछी जाती है पेरिटोनियल कैविटी में कि उसका मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट कौन सा है, तो इन सुपाइन पोजीशन इट विल बी द पाउच ऑफ मॉरिसन और द हिपैटोरीनल पाउच. अब एज द नेम सजेस्ट हिपैटोरीनल यानी समथिंग रिलेटेड टू लिवर एंड किडनी, तो हिपैटोरीनल पाउच वही होता है. इट इज अ पेरिटोनियल सैक which is formed between the right lobe of liver and the upper pole of kidney. So this is the pouch of Morrison. Okay. Then in standing position, the most dependent part of the peritoneal cavity will be the pouch of Douglas या rectouterine pouch, and in male it will be the rectovesical pouch. ठीक. पाउच ऑफ डगलस के बारे में हमने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि अगर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का मेटास्टेसिस होता है पाउच ऑफ डगलस में तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रेक्टल शेल्फ ऑफ ब्लमर. ऐसे 4-5 और स्ट्रक्चर हैं जहां पे गैस्ट्रिक कार्सिनोमा अगर मेटास्टेसिस करता है तो उनका अलग नाम दे दिया गया है, जिसको मैंने अपनी लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक की वीडियो में एक्सप्लेन किया है. प्लीज डू वॉच दैट वीडियो. देन वी हैव द पार्ट्स ऑफ स्टमक. तो स्टमक के मेनली 4 पार्ट होते हैं. द पार्ट in which esophagus open is known as the cardia or the cardiac end, और cardiac और esophageal orifice के जस्ट ऊपर जो ये डोम स्ट्रक्चर होता है इसको बोला जाता है फंडस. देन मेजॉरिटी ऑफ द स्टमक इज मेड अप ऑफ बॉडी और द कॉर्पस एंड द बॉडी एंड इनटू पाइलोरस, एंड पाइलोरस कैन बी डिवाइडेड इनटू पाइलोरिक एंट्रम एंड द पाइलोरिक कैनाल. And the angle between the pylorus and the body is the incisura angularis, and between the esophagus and the fundus is the cardiac notch. So these were the parts of stomach. Then we have layers of stomach. तो parts of stomach भी 4 होते हैं और layer of stomach भी 4 होती हैं. From outside to inside these are serosa. Serosa is mainly made up of peritoneum. Then we have the muscularis externa, जिसमें outside वाली होती है longitudinal layer, middle is the circular layer and innermost is the oblique layer. Then we have the submucosa, and submucosa is made up of blood vessels, areolar tissue, lymph vessels, और इसमें एक बहुत important structure होता है that is the mesenteric plexus. Okay. Then we have the mucosa, and the mucosa is made up of surface epithelium, lamina propria and muscularis mucosa. फिर mucosa में हमारे पास gastric glands होती हैं which open into the stomach cavity by gastric pits. ठीक. और ये जो gastric glands होती है इसमें different type of cells arrange होती हैं जो अपना product है वो gastric pit के through stomach cavity में भेजती हैं. Okay. Then we have the
Then we have the gastric glands. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फंडिक ग्लैंड, मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड या फिर ऑक्जेंटिक ग्लैंड, विच इज 5 टाइप ऑफ सेल्स. फर्स्ट वन इज द चीफ सेल और पेप्टिक सेल और पेप्सिनोजन सेल. देन ऑक्जेंटिक सेल और द पेराइटल सेल. देन वी हैव द म्यूकस नेक सेल. देन एंटेरोक्रोमाफिन सेल या एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल यानी ECL सेल. Then the pyloric gland have G cell, mucus cell, EC cell and ECL cell. Then you have the cardiac gland which has mucus cell, EC cell, ECL cell and chief cell. But generally gastric glands पे question नहीं बनता है. Then we have secretory product of some cell और इसमें सबसे important है intrinsic factor of Castle. क्योंकि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो कौन सी सेल सिक्रीट करती है, तो अक्सर ये पूछ लिया जाता है. ओके, तो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल इज सिक्रीट बाय पेराइटल सेल एंड पेराइटल सेल आल्सो सिक्रीट HCl. देन चीफ सेल सिक्रीट पेप्सिनोजन, रेनिन, लाइपेज, जिलेटिनेज एंड यूरेज. देन म्यूकस नेक सेल सिक्रीट म्यूसिन एंड वी हैव G सेल सिक्रीट गैस्ट्रिन. रिमेंबर चीफ सेल और पेराइटल सेल जो होती है वो फंडस और बॉडी में प्रेजेंट होता है, वहीं जो G सेल प्रेजेंट होती है वो एंट्रम में प्रेजेंट होता है. और एक और टाइप की हमारे पास सेल होती है जिनको बोला जाता है D सेल. एंड D सेल इज प्रेजेंट थ्रू आउट द स्टमक, यानी ये पूरे के पूरे स्टमक में प्रेजेंट होता है. एंड इट सिक्रीट सोमैटोस्टैटिन. ओके. Then we have EC cell which secrete serotonin and ECL cell which secrete histamine. Then we have gastric juice जिसका डेली सिक्रीशन होता है 2.5 लीटर. ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक. Then we have the gastric juice का pH जो usually less than 3 होता है, between 1 to 2. Then it is the most acidic of all GIT secretion. ठीक. लेकिन अगर क्वेश्चन आता है मोस्ट बेसिक कौन सा GIT सिक्रीशन होता है, तो मोस्ट बेसिक जो होता है वो होता है तुम्हारा पैनक्रियाटिक जूस जिसका pH ऑलमोस्ट 8 होता है. देन वी हैव द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस जिसमें मेनली वाटर होता है 99.5% एंड सॉलिड अप टू 0.5%. सॉलिड में ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक में एंजाइम्स, म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर आता है और इनऑर्गेनिक में HCl, सोडियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा चीजें आती हैं. ओके, बट कंपोजिशन जनरली नहीं पूछा जाता है. Then we have the phases of gastric secretion, which is a very important topic. Okay, so let's start with it. तो जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बट द अमाउंट विल डिपेंड अपॉन टाइम एंड द स्टिमुलस. ओके, सो टाइम अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो होता है वो होता है नाइट में, और जो मिनिमम होता है, मैक्सिमम जो होगा वो कब होगा, मैक्सिमम नाइट में होगा, और जो मिनिमम होगा वो होगा अर्ली मॉर्निंग. ओके, देन स्टिमुलस कैसे डिफर करता है वो अभी हम इस फेजेस में देखेंगे. सो फर्स्ट वन इज द सिफेलिक फेज. सो एज द नेम सजेस्ट, सिफेलिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू हेड. तो सिफेलिक फेज में जो स्टिमुलाई आता है वो हेड में से आता है. ओके, एंड इट इज कंट्रोल्ड ओनली बाय नर्वस मैकेनिज्म. रिमेंबर, सिफेलिक फेज का कंट्रोल सिर्फ नर्वस मैकेनिज्म के थ्रू होता है. ओके, अब इसके अंदर दो रिफ्लेक्सेस होते हैं, दैट इज अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एंड कंडीशन रिफ्लेक्स. ठीक, तो अनकंडीशन रिफ्लेक्स इज समथिंग विच इज इनबॉर्न, कि अगर ये हुआ तो ये होना ही है. तो जैसे ही कोई इंसान खाना खाता है और उसके मुंह में टेस्ट आता है तो तुरंत गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है. तो दिस इज द अनकंडीशन रिफ्लेक्स. बट कंडीशन रिफ्लेक्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस, लाइक खाना देख के, उसको सूंघ के, उसके थॉट के बारे में सोच के गैस्ट्रिक सिक्रीशन होना. दिस इज द कंडीशन रिफ्लेक्स. और ये दोनों रिफ्लेक्स थ्रू वेगस होता है. और हमने अपनी नर्व सप्लाई वाली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा है कि वेगस जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई लेके जाता है स्टमक को, और इट इज सिक्रीटरी मोटर, यानी इट विल कॉज सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. अब ये कैसे करता है वो हम अभी देखेंगे.
Okay, so cephalic phase, as the name suggests, stimuli will be present from the stimuli जो आएगा वो कहाँ से आएगा, वो हेड से आएगा. ठीक, ये है फूड. तो फूड को किसी ने टेस्ट किया या उसको देखा या उसके बारे में सोचा, तो उसकी वजह से जो स्टिमुलस है वो कहाँ गया, वो गया हाइपोथैलेमस में. हाइपोथैलेमस में हमारा क्या होता है, एपेटाइट सेंटर होता है. ओके, एपेटाइट सेंटर में जाएगा विच इज प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस एंड टू द एमिगडाला. ठीक, जैसे अगर हमने खाना टेस्ट किया तो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो होगी वो इम्पल्स लेके जाएगी टू द एपेटाइट सेंटर. और या खाने के बारे में सोचा तो डायरेक्ट जो होगा वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में वो थॉट का बनेगा और इम्पल्स जाएगी सीधे एपेटाइट सेंटर में. लाइकवाइज ऑप्टिक नर्व लेके जाएगी इम्पल्स. ठीक, फिर उसके बाद जो ये एपेटाइट सेंटर होता है वो स्टिमुलस भेजता है टू द न्यूक्लियाई ऑफ वेगस, डोर्सल न्यूक्लियाई ऑफ वेगस दैट इज प्रेजेंट इन द मेडुला. ओके, तो फिर वो स्टिमुलस किसको भेजता है, डोर्सल न्यूक्लियाई ऑफ वेगस विच इज प्रेजेंट इन मेडुला. ठीक, हाइपोथैलेमस से स्टिमुलस कहाँ गया, तुम्हारे मेडुला में. ठीक, फिर जो वेगस होता है, वेगस नर्व जो होती है, फिर वो अपना इफरेंट फाइबर के थ्रू ये स्टमक तक इंफॉर्मेशन या इम्पल्स लेके जाती है कि अब तुम्हें गैस्ट्रिक सिक्रीशन करवाना है. तो दिस इज द मैकेनिज्म थ्रू विच गैस्ट्रिक सिक्रीशन अकर इन द cephalic phase. ओके, then we have the gastric phase, and the gastric phase is controlled by both nervous and hormonal mechanism. Okay, now जैसे ही बोलस जो है वो स्टमक के अंदर गया तो उसने वहां क्या किया, डिस्टेंशन किया. डिस्टेंशन के जो इम्पल्स हुए, मतलब डिस्टेंशन बेसिकली स्ट्रेच, अगर और स्टमक में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं तो वो इम्पल्स भेजते हैं टू द वेगस नर्व एंड टू द लोकल नर्व जो वहां पे प्रेजेंट है, यानी माइंट्रिक प्लेक्सिस को. ठीक, फिर ये इन्फॉर्मेशन जाता है वापस से मेडुला में टू द डोर्सल न्यूक्लियाई ऑफ वेगस, और फिर वेगस वापस से अपने इफरेंट फाइबर के थ्रू स्टमक को इम्पल्स भेजती है कि तुम सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस करो. ओके, दिस वॉज द नर्वस मैकेनिज्म. देन वी हैव द हार्मोनल मैकेनिज्म. ठीक, तो जो पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं किसको, जी सेल को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो क्या निकाले, वो गैस्ट्रिन निकाले. एंड गैस्ट्रिन इज सिक्रीटरी मोटर, यानी इट विल कॉज सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस. ओके, सो दिस वाज द गैस्ट्रिक फेज. लेट्स सी इन दिस डायग्राम कि गैस्ट्रिक मैकेनिज्म कैसे कैसे होता है. ओके, तो स्टमक की डिस्टेंशन के कारण स्टिमुलस आया, स्ट्रेच रिसेप्टर ने उसको कैच किया और उसको माइंट्रिक प्लेक्सिस को भेजा, और किसको भेजा, वेगस के एफरेंट फाइबर को. ठीक, एफरेंट फाइबर आर दोज फाइबर जो इम्पल्स लेके जाते हैं टू द सीएनएस, और इफरेंट फाइबर आर दोज फाइबर जो इम्पल्स को वापस लेके आते हैं सीएनएस से. ठीक, तो माइंट्रिक ने भी वेगस के न्यूक्लियाई को भेजी इम्पल्स, और वेगस के एफरेंट फाइबर ने भी स्ट्रेच रिसेप्टर से इम्पल्स लेके डोर्सल न्यूक्लियाई ऑफ वेगस इन द मेडुला उसको इम्पल्स भेजी. फिर वहां से इफरेंट फाइबर के थ्रू इम्पल्स आई कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन चालू कर दो. ओके, सो दिस वाज द नर्वस मैकेनिज्म. और हार्मोनल मैकेनिज्म में जी सेल जो होंगी वो एक्टिवेट हो जाएंगे ड्यू टू द पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन, and it will cause secretion of gastrin, and gastrin will cause release of gastric juice. So this was the gastric phase. Then we have the intestinal phase, which is mainly controlled by hormonal mechanism. Okay, तो अब जैसे ही काइम एंटर करता है इंटेस्टाइन में, वो सेम चीज करेगा, डिस्टेंशन करेगा, स्ट्रेच रिसेप्टर को स्टिमुलस भेजेगा, और सेम वेगस वाला मैकेनिज्म होगा. तो दिस विल बी द न्यूरल मैकेनिज्म. अब इसमें क्योंकि हार्मोनल मैकेनिज्म मेन है तो उस पर हमें ज्यादा कंसंट्रेट करना है. ओके, देन तो जो हमने पढ़ा था कि जी सेल जो होती हैं वो स्टमक में होती हैं, सो जी सेल जो होती हैं वो इंटेस्टाइन में भी होती हैं. ओके, सो अब जो अमीनो एसिड्स बने, जो पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन है,
वो जी सेल जो इंटेस्टाइन की है उनको स्टिमुलेट करेगा और वो सिक्रीट करेंगी गैस्ट्रिन। और क्योंकि गैस्ट्रिन जो है वो एक हार्मोन है तो वो ब्लड सप्लाई के थ्रू पहुंचेगा स्टमक में और वहां पे क्या करेगा, वो कॉज करेगा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन। ओके। और जैसे ही काइम आता है इंटेस्टाइन में तो हमें पता है कि इंटेस्टाइनल जूस निकलना शुरू होता है जिसमें ढेर सारी एंजाइम्स होती हैं। तो मोस्ट ऑफ दिस एंजाइम दे आर इनहिबिटरी टू गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। ओके, सो दीज आर सिक्रीटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, सोमैटोस्टैटिन, जीआईपी, वीआईपी। ठीक, सो ऐसे करके स्टिमुलेशन और इनहिबिशन दोनों जो होंगे वो इंटेस्टाइनल फेस में हमें देखने को मिलेगा। लेट्स सी इन दिस डायग्राम। सो जैसे सो दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जैसे ही इसमें काइम आया या पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स आए, उन्होंने जी सेल को एक्टिवेट किया। जी सेल ने क्या करा, गैस्ट्रिन रिलीज किया और गैस्ट्रिन जो है वो ब्लड वेसल के थ्रू कहां पहुंचा, स्टमक में पहुंचा और स्टमक में जाके उसने सिक्रीशन करवाया गैस्ट्रिक जूस का। सो दिस वाज द नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म ऑफ द इंटेस्टाइनल फेस। ओके, सो जो क्वेश्चन आता है वो इस टेबल से आता है। वो प्रीवियस वाला पार्ट तो इसलिए बस समझाया था ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ओके, तो कौन से फेस में कितना कितना एसिड सिक्रीशन होता है या गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है वो, तो सिफेलिक में होता है 20 to 30%, गैस्ट्रिक में मैक्सिमम होता है फ्रॉम 60 to 70% एंड इंटेस्टाइनल फेस में ओनली 10% गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन होता है। ठीक, स्टिमुलाई इन सिफेलिक फेस विल बी chewing, swallowing, sight, smell or thought of food, and in gastric it will be distension of stomach या partially digested protein. Then in the intestine it will be distension and partially digested protein. Intestine में एक unknown factor होता है enteroxantic which also causes secretion of the gastric juice. ठीक, देन सिफेलिक में हमने पढ़ा था कि मेनली जो स्टिमुलेटर होता है वो न्यूरल मैकेनिज्म होता है और वेगस नर्व के थ्रू होता है। गैस्ट्रिक में न्यूरल प्लस हार्मोनल दोनों होते हैं। और लोकल वेगल रिफ्लेक्स, तो लोकल रिफ्लेक्स इज थ्रू द माइंट्रिक प्लेक्सिस। और वेगल रिफ्लेक्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एफरेंट वेगस फाइबर लेके जा रहे थे स्टिमुलस को और इफरेंट फाइबर वापस ला रहे थे, यानी दोनों चीजें जो हो रही हैं वो वेगस के थ्रू हो रही हैं, देयरफॉर इट इज नोन एज द वेगल रिफ्लेक्स। ठीक, और हार्मोनल जो था वो किसके थ्रू हो रहा था, गैस्ट्रिन और हिस्टामिन। ओके, देन इंटेस्टाइनल में एंटेरोक्सिंटिक हमने बता दिया, उसके अलावा सर्कुलेटिंग अमीनो एसिड ऑल्सो कॉजेज सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। सो नाउ व्हाट इज द स्टिमुलाई फॉर गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्टिमुलाई फॉर गैस्ट्रिक सिक्रीशन कौन कौन से होते हैं या इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं। तो अगर ये स्टिमुलाई जो होते हैं वो तो जनरली याद हो जाते हैं, बट अगर नहीं याद होते हैं तो उसके लिए भी एक ट्रिक है कि the trick is गवाही, where GA stand for gastrin, VA stand for vagus and HI stand for histamine. These three are the stimuli for gastric secretion. ठीक, now we have the inhibitor of gastric acid secretion. तो inhibitor of gastric acid secretion के लिए भी एक ट्रिक है कि जिन लोग का SSC क्लियर हो जाता है they become VIP and GIP. Okay, so S stand for somatostatin, S stand for secretin, एक और इनहिबिटर इसमें ऐड कर लो, दैट इज सिक्रेटिन। C स्टैंड फॉर कोलेसिस्टोकाइनिन, ओके सिक्रेटिन यहाँ पे दिया हुआ है, कोलेसिस्टोकाइनिन। देन VIP इज द वैसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड एंड GIP इज द GI पेप्टाइड। ओके, लो पीएच जो होता है वो D सेल को एक्टिवेट करता है एंड D सेल सिक्रीट सोमैटोस्टैटिन। सो लो पीएच और सोमैटोस्टैटिन एक ही बात हो गई। ठीक, अदर फैक्टर आर प्रेजेंस ऑफ फूड, प्रोटीन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट, इरिटेंट इन अपर इंटेस्टाइन, ये भी इनहिबिटर होते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन के। सो दिस वाज इट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब।